ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم جیسے ایوالو ہوا ہے، وہ ہوا کیا ہے کہ گورنمنٹ اب بن گئی ہے گورنمنٹ کے لیے. گورنمنٹ ایوالو اس طرح ہو گئی ہے کہ وہ گورنمنٹ اپنے آپ کا ہی فائدہ پہلے دیکھتی ہے، پھر عوام کا فائدہ دیکھتی ہے. حالانکہ گورنمنٹ کا مین کام ہوتا ہے عوام کی بہتری کرنا. تو یہ دو پیرل ٹریکس پہ چل گیا کام. ہمارا جو ڈسکنیکٹ ہے آج کہ پاکستان کی کیا ضرورت ہے، کیا وہ گورنمنٹ وہ پاکستان کی ضرورت پوری کر رہی ہے یا وہ گورنمنٹ اپنے آپ کو چلانے کی ضرورت پوری کر رہی ہے. یہ بڑا، اور یہ ہمارا ملک میں نہیں، یہ آپ اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جب بھی ایک سسٹم ڈی جنریٹ کرتا ہے، جب خرابی کی طرف جاتا ہے تو وہ سسٹم پھر اپنے آپ کو بچانا شروع ہو جاتا ہے. آٹومن ایمپائر کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جب آٹومن ایمپائر دنیا کا ایک وقت پہ سب سے بڑا ایمپائر تھا، جیسے وہ سکڑتا جا رہا تھا اس کی بیوروکریسی بڑھتی جا رہی تھی. تو اس سے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کہ جو اس ملک کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، ویلتھ کریشن، دولت میں اضافہ کریں. ہم پاکستان کا دولت میں جب اضافہ کریں گے نوکریاں ملیں گی، ٹیکس کلیکشن بڑھے گی، اتنے جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اس ملک کے اوپر ہم اپنے قرضے واپس کر سکیں گے. لیکن جو گورنمنٹ ہے جس طرح ہماری بن چکی ہے وہ اس طرح دیکھتی نہیں ہے. تو جو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو دو پیرل سٹریمز ہیں ان کو اکٹھا کریں. تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب وہ پاکستان میں آئیں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہم ان کے لیے ہم موقع پیدا کریں کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کر سکیں. لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی کے پاس اس وقت جو ان کا جی ڈی پی یا سالانہ آمدنی ہے، 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں. یہ 90 لاکھ پاکستانی کی جو سالانہ آمدنی ہے وہ تقریباً ہماری 22 کروڑ لوگوں کی اتنی آمدنی ہے. تو یہ سب سے پیسے والے، ہنر والے اس وقت پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سسٹم نے جو ابھی مسلم نے بڑی اچھی طرح بیان کیا کہ ایک سسٹم ان کو یہاں چلنے نہیں دے رہا تھا، وہ باہر جا کے کامیاب ہو گئے. یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے، سسٹم روک کے رکھا ہوا تھا. باہر گئے، انہوں نے کوئی سفارش نہیں تھی، لیکن سسٹم نے اجازت دی ان کو پیسہ بنانے کی، کامیاب ہونے کی. اور یہی آپ دیکھیں گے جو ہمارا بہترین ٹیلنٹ باہر چلا گیا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی ہم اس ملک میں ان کو، اس ٹیلنٹ کو فنکشن کرنے کے لیے موقع نہیں پرووائڈ کر رہے تھے. تو ہم اس وقت اس احساسے کو جو باہر ہمارا بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس ڈالرز ہیں، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ڈالرز ہیں. اب دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ جب انویسٹ کریں گے تو ہماری نوجوان آبادی ہے، ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے. تو ایک تو ہم نے اپنی نوجوان آبادی کو نوکریاں دینی ہیں. تو جب وہ پیسہ اپنا انویسٹ کریں گے نوکریاں ملیں گی. لیکن اس سے بھی بڑی چیز اس وقت پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں کوشش ہی نہیں کی اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی. ایک ملک تب امیر ہوتا ہے جب اس کے پاس چیزیں دنیا کو بیچنے کے لیے ہوں. جب اس نے اپنے ایکسپورٹس بڑھائی نہیں، یعنی ایک سنگاپور کی 300 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہے، 60 لاکھ کی آبادی ہوگی اس کی. پاکستان کی انشاءاللہ اس باری 30 ارب کی ایکسپورٹس ہوگی. ملیشیا جس کی کوئی 6 کروڑ کی آبادی ہے، اس کی 200 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہے. تو ہم 22 کروڑ لوگ سوچیں کہ ہم کتنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے تھے اب، لیکن کبھی نہ گورنمنٹ کسی نے کوشش ہی نہیں کی. تو جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں اور ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہم اپنا ڈالر کا قرضہ واپس کریں گے. ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا، لوگوں کی دولت میں اضافہ ہوگا. لیکن جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی تو جو ہمارا اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح پاکستان میں لائیں تاکہ وہ انویسٹمنٹ کریں. جب وہ انویسٹمنٹ کریں گے ہمارے ڈالرز، اور جب ڈالر لے کے آئیں گے ہمارے ریزروز بڑھیں گے. ریزروز بڑھیں گے، روپیہ مضبوط ہوگا. جیسے جیسے روپیہ مضبوط ہوتا جائے گا مہنگائی کم ہوتی جائے گی، غربت کم ہوگی. تو اس سائیکل میں آپ نے سمجھنا ہے کہ کیوں ضروری ہے ہمیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی جس طرح مسلم ہیں ان کو پوری طرح کوشش کریں کہ پاکستان میں وہ موقع دیں کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کر سکیں. ابھی تک اوورسیز پاکستانی کیا کرتے تھے؟ وہ زیادہ سے زیادہ ایک پلاٹ کے اوپر
प्लॉट खरीद लेते थे। और बदकिस्मती इस सिस्टम की खराबी इतनी थी कि वो प्लॉट लेते थे, उसके ऊपर कब्जा हो जाता था। और कितने पाकिस्तानी आए कि उन्होंने बेचारों पैसे बनाए, और खासतौर पे मजदूर 15-15, 20-20 साल पैसा इकट्ठा करके बेचारों ने प्लॉट लिया। यहां कब्जा ग्रुप ने वो प्लॉट के ऊपर कब्जा किया, और हमारा निजाम ही ऐसा था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इस वक्त ये हमारी जंग है इस सिस्टम को ठीक करने की, और इस सिस्टम को ठीक करने की जंग ऐसे है कि हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ। एक माशरा तब आगे बढ़ता है जिधर कानून की बालादस्ती हो। कोई भी मुल्क खुशहाल नहीं है जिधर कानून की बालादस्ती नहीं है। आज अमीर तरीन मुल्क हैं वसाइल के तौर पे, अफ्रीका में हैं, कई अमीर तरीन मुल्क हैं, लेकिन क्योंकि वहां कानून की बालादस्ती है, गुर्बत की इंतहा है। और पाकिस्तान का भी यही मसला है कि जैसे जैसे हम अपना रूल ऑफ लॉ, हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती वो जैसे जैसे कायम करते रहेंगे, खुद ही ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको इत्मीनान होगा कि उनके पैसे के ऊपर कोई कब्जा नहीं करेगा, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उनकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। तो इसके लिए ये है सारी स्ट्रगल चल रही पाकिस्तान की इस वक्त। ये जो सारे पुराने बड़े बड़े लोग जिन्होंने अरबों रुपया चोरी, डॉलर चोरी करके बाहर बड़े बड़े महलात लिए हुए हैं, ये सारे जो इस वक्त अटैक कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, इनका मसला ही एक है, ये कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। क्योंकि इस वक्त ये वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम से फायदा उठा के बैठे हुए हैं, और करप्ट सिस्टम की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ये दुबई क्यों जाके इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि दुबई में कानून है, कोई किसी की जरूरत नहीं है इनकी जिंदगी को कोई पैसा मांगे, कुछ करे, रिश्वत मांगे, कोई किसी की जरूरत नहीं है। सारे पाकिस्तानी कराची से उठ के जाके दुबई में पैसा लगा रहे हैं। तो वही अब हमने करना है कि यहां कानून एस्टेब्लिश करना है ताकि बाहर से पाकिस्तान में पैसा आए। और इंशाअल्लाह जिस तरह हम 3 साल पूरी जंग लड़ रहे हैं इसके लिए, इंशाअल्लाह मैं हर साल हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसमें, और हर साल आप देखते रहेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा पाकिस्तान में आ रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री चल पड़ी है इस वक्त, आज देखें रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल्स हो गई है। यानी जब इंडस्ट्री चलती है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है इस बार। अब जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं वो है टूरिज्म, क्योंकि मैंने दुनिया में तकरीबन सारी दुनिया देखी है, और मुझे वैसे भी शौक ट्रैवलिंग का बहुत था, और पाकिस्तान सारा मैंने देखा हुआ है। मैं बहुत देर से ये समझता हूं कि हमारा इतना बड़ा पोटेंशियल जो टूरिज्म में है, उसके हम बल्कि शुरू भी नहीं हुए उस रास्ते पे कि ये टूरिज्म का हम फायदा उठाएं। हमने जब केपी में हमारी गवर्नमेंट बनी तो हमने केपी में कोशिश की टूरिज्म बढ़ाने के लिए, और आप हैरान होंगे कि जो हमारे 5 साल 2013 से 18 तक जो सूबा सबसे तबाही हुई थी, जिस सूबे में वॉर ऑन टेरर की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पख्तूनख्वा को हुआ था, तो वो 5 सालों में यूएनडीपी की अब रिपोर्ट है कि उन 5 सालों में जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा था। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि हमने पख्तूनख्वा में टूरिज्म को पूरी कोशिश की, टूरिज्म बढ़ाने की। यहां गलियात के लोग आपको बताएंगे कि 1 साल के अंदर हमारे पहले 1.5-2 सालों में यहां जमीन की कीमतें दुगनी हो गई गलियात में, और क्योंकि हमने यहां टूरिज्म के लिए सारी प्रोविजन की। देखें, सबसे तेजी से हम इस मुल्क में अपनी दौलत में इजाफा कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं टूरिज्म को बढ़ा के। और ये जो आज मुस्लिम, ये एक उस सफर के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम है। हिल्टन जैसा अगर बड़ा ब्रांड, और इस जगह पे ये वाटरशेड के ऊपर है, इससे बेहतर लोकेशन नहीं मिल सकता कहीं भी। जब आप हिल्टन जैसा यहां 5 स्टार जब एक होटल बनेगा तो इससे क्या होगा? इससे पैसे वाले लोग आएंगे। असल में टूरिज्म 2 किस्म की होती है, एक मैस टूरिज्म होती है, एक हाई एंड टूरिज्म होती है। जो असल पैसा जनरेट होता है वो हाई एंड टूरिज्म से होता है। तो जब हिल्टन आता है तो हाई एंड टूरिज्म आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ फिर जो चीजें क्या आएंगी,
यहां स्कीइंग बढ़ेगी। पहले सर्दियों में खाली पड़ा होता था ये सारे गलियार, अब सर्दियों गर्मियों में दोनों में होटल्स भरे हुए होते हैं। तो असल में जो अब अगला फेज पाकिस्तान में आ रहा है, रिजॉर्ट्स, होटल्स के बाद रिजॉर्ट्स और फिर स्कीइंग। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान, एक ऑस्ट्रियन ने मुझे बताया कि जो पाकिस्तान में स्कीइंग है वो दुनिया में इतनी नहीं, क्योंकि अब बड़ी देर तक बर्फ रहती है। हमारे पहाड़ इतने इतने ऊंचे हैं, ये सारा पख्तूनख्वा के अंदर और आगे नॉर्दर्न एरियाज में, कि हम वो सर्दियों में भी होटल्स भरे रहेंगे स्कीइंग की वजह से, और गर्मियों में वैसी लोकल टूरिज्म इतनी है। ईद की छुट्टियों में 27 लाख टूरिस्ट आए हैं पख्तूनख्वा के अंदर, 27 लाख टूरिस्ट आए हैं। अब सोचेंगे ये जब टूरिस्ट आया है, इसके लिए हम कोई रिजॉर्ट्स कर देते हैं। वो बच्चों के साथ लोग आते हैं, बच्चों के लिए, जिस तरह यहां से दुबई जाते हैं। अब दुबई में क्या है, वो सिर्फ रेत है, साथ समुंदर है, लेकिन वो रिजॉर्ट्स बना देते हैं, वो रिजॉर्ट्स पे पहुंच जाते हैं लोग, और रिजॉर्ट्स की वजह से पैसा खर्च करते हैं वहां। तो वो जो टूरिज्म की जो वैल्यू ऐड होता है, वो जब आप रिजॉर्ट्स की तरफ जाते हैं। तो अब अगला फेज इसका आएगा, रिजॉर्ट्स डेवलप करेंगे, स्कीइंग, और यहां आगे बड़े एरियाज हैं। मुमताज, ये ना समझो कि ये सिर्फ तुम्हारा पहला बैरन पाकिस्तान में है। ये आप आगे हमने बड़ी जबरदस्त जगह देखी हुई हैं, और वो मैं आपको बताऊं, आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक है कि उसके जो जमीन की कीमत है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उसका फीजिबल नहीं रहता रिजॉर्ट बनाने के लिए। तो हमने अब पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में हमने अब जोनिंग की है, और उन जोनिंग के अंदर हम फिर लीज करेंगे और सस्ती लीज करेंगे रिजॉर्ट्स के लिए, जो भी आपने बातें की। और 50 साल वैसे लंबी लीज होती है, आप कहते हैं 100 साल, तो ये भी हम डिबेट कर लेंगे कि 50 साल या उससे ज्यादा करनी है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि टूरिज्म के लिए अब हम उनके लिए जो चीजें इंपोर्ट करें टूरिज्म के लिए, उसमें भी कंसेशन दें, उसमें भी ड्यूटी कम करें जो यहां पाकिस्तान में नहीं बनती, और आपको जमीन भी सस्ती दें ताकि प्रमोट करें इसके अंदर। और मेरा ये ओपिनियन है कि इंशाल्लाह अगर हमने सही माने में टूरिज्म के ऊपर तवज्जो दे दी, जो अब हम दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा कर्जा है, ये सिर्फ हम टूरिज्म के ऊपर हम अपना पाकिस्तान में बैरूनी मुल्क कर्जा उतार सकते हैं। मैं फिर से मुमताज आपको आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग में मुबारक देता हूँ। मैं स्पेशली इसलिए आज आया ग्राउंड ब्रेकिंग पे। उम्मन तो मैं इंतज़ार करूँगा जब इसकी ओपनिंग होगी आपकी होटल की, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग में इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आपको मैंने पहली दफ़ा सजेस्ट किया था यहाँ के नथिया गली में आके रिजॉर्ट बनाओ, आज से 4-5 साल पहले। और मैं आपको इनकरेज इसलिए करना चाहता हूँ, मैं और भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इनकरेज करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान आएँ, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, और इंशाल्लाह हम जितनी भी रुकावटें हैं उनके रास्ते में इंशाल्लाह वो हम दूर करेंगे। शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।